Hello everyone, welcome to Study and Fix. In today's video, we are going to learn about colonial period of America. Colonialism overview. So the Englishmen established colonies along the eastern seaboard, and these the 30 settlements were there, named as the New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, and Georgia. So when they landed to the land here, so the first they had to originally made the counter with Arawaks. So who are Arawaks? Arawaks वहीं के local people हैं. Those were also known as Amerindians. So Amerindian name Christopher Columbus ने दिया, and this is the combination of two words. One is the America plus Indian. So European का जो arrival था, it was not seen so welcoming by the Native Americans. So it was the apocalypse because they thought it will be a destruction of their culture and harmony there, and which proved to some extent correct as well, because they had brought the blood corruption along with the settlement. So settlers also faced many challenges. So they had to face a lot of hardship in the living in wilderness. Actually, so they were not good. Actually, they had the shortage of food. They were not known to the way and means of surviving in America. And so these pilgrims settled near Cape Cod after a rough journey of it, because many of the people had died during the sail of Mayfarer. So Mayfarer क्या है यहाँ पर? Mayfarer is the name of ship which carried these pilgrims to North America continent. So the first permanent English settlement at the Plymouth had happened, and here starts the development of colonies of England. So let's know some of the territorial occupation. So first and foremost, the colony was set up by the Spain, named as for Florida of the current time. It was Saint Augustine earlier, and the English colonization was also settled. It had happened in Jamestown and occupied the Manhattan Island. Then French colonization happened in the St. Lawrence River across alongside of it, and Dutch colonies were set up in Hudson River area. There were some settlements of the Swedish colonies, German and Scots, Irish colonies, and African slavery was all across America. Going to the year-on-year timelines, so the St. Augustine was founded by the Spain in 1565. That was the first colony which was made in North America continent in the area of current United States of America. In the 1607, Jamestown was established. This was the first permanent English colony in North America, which is located in Virginia. Then in 1620, Pilgrims reached Plymouth, and they also made a Plymouth colony. In 1626, Manhattan Island sold to the Dutch West India Company, and this was sold by the Manatee people. Then New Sweden established in 1638. Then in 1681, the Pennsylvania Charter declared. Then there was a Salem witch trial happened in 1692, wherein the innocent witches, the people who were doing the witch practices, were hanged to death, and these were total 19 to 20 in numbers. They were not proved guilty in anything, but yes, out of the superstition they were killed. So in 1718, New Orleans was founded, and in 1733, Georgia was founded. So these are the timelines of the colonial time. So if we talk about the English settlements here, so we need to just keep in mind till 1620. And later on, some of these Sweden establishment and Dutch establishment, so these were basically captured by Britishers, right? So the English people, they have some conquest happened, and eventually these people from the England won the war, and they had made the settlement under their controls. Economic and religious drive. So there was some motivations from the perspective of economics in the England. Actually, what happened there? So there was a food shortage because the land of the farming was converted to the sheep pastures. Why it was done? Because from instead of food, wool was giving more money. Okay, so the agriculture workers become jobless over the night because they were doing in the farming,
However, the landowners converted this area for producing wool of the sheep. Then next age was the stage of mercantilism. So this was the business age when the European countries competed fiercely for colonies. अब उन्होंने बहुत स्पीडली अपनी कॉलोनी सेटअप की एंड कॉलोनियल कॉन्क्वेस्ट हुआ और बेसिकली इकोनॉमिक एंड वेल्थ मेकिंग ड्राइव्स वहाँ पर किए, यानी कि बिजनेस को ग्रो करना शुरू कर दिया. इन द कॉन्क्वेस्ट इफ आई से, सो देयर वाज अ बिग वॉर, देयर वाज अ वॉर ऑफ डच and English people, in which the Dutch people had surrendered easily, and because of they were outnumbered. So there were some colonies in the North America. Primarily these were because of the business ventures, and it also provided an outlet for surplus population. So the population were not able to accommodate in England, so that population was to be accommodated in America, and it was also one of the biggest reason of settlement here. Also, the colonies in America had given the more religious freedom in some cases, and main purpose was to generate profit for sponsors, the sponsors of England. So they were making money here and draining the America and making the repositories in England. So there were some colonies of tobacco, because for this survival, English settlements wanting some food as well as something for the business. So they had survived for the early colonies were surviving over the tobacco. So the first English settlement in North America in 1587 at Roanoke had happened, but there was no trace or any evidence was left, because that tribe had completely gone. So that colony was never flourished. So that is why this was the re-entry in the North America continent for colonization. Okay, so those people are mysteriously disappeared. Then there was a formation of Jamestown, because from the London Company sent 144 men to Virginia in 1606, and the Jamestown was established in 1607. Right, and these colonists had initially focused on the gold rather than the finding the ways and means of surviving there. So उनको थोड़ा सा mercantilism चाहिए था. They wanted to drain the money from here, and they were digging the gold here, but this was not so successful for them. Then later on there was a cultivation of tobacco. Tobacco came into the existence, and Virginia settlers began cultivating tobacco by 1616. So the tobacco ensured the colony's survival. There was also one of the colonies established in 1632 by the Cecil Calvert, which is the Maryland colony. So this was after the name of the monarchy in England. There were 3 ships England से चले, the Fortune in 1621, Anne 1623 and Little James 1623. तो तभी ये सारे ships were carrying the people, and those people were called as old comers. ठीक है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा था कि पहले आने वाले थे, पर ये ऐसा नहीं हुआ. So the first permanent European settlement in New England had happened, which is the Plymouth colony. So they came and they settled near the Massachusetts and Virginia. So there was the founded by the affluent Puritans. There is a Massachusetts Bay colony, which was assisted by local natives in farming, fishing and hunting, because it was never easy to survive there. So the native people had helped to the colonists the ways and means of survival. उन्होंने उनको फार्मिंग सिखाया, फिशिंग सिखाया, हंटिंग सिखाया, and later on actually that Bay colony, Massachusetts Bay colony became a prosperous settlement. So उनको अब रहना आ गया था और वो यहाँ पर रहने लगे थे. And जो local अमेरिकन्स हैं उन्होंने भी इनका बहुत हेल्प किया. So basically ये जो लोग थे, these were driven by the Puritan ideologies, and they had settled here. Then the expansion of Massachusetts colony had happened. So there were some the Connecticut, New Haven merged in 1665, and the Rhode Island colony established for religious liberty. तो यहाँ पर अभी religious viewpoint से ज़्यादा चीज़ों को देखा जा रहा था. तो मैसाचुसेट्स में से बेसिकली कनेक्टिकट, न्यू हेवन को मर्ज कर लिया, रोड आइलैंड कॉलोनीज़ को एक रिलीजियस लिबर्टी दे दिया. न्यू हैम्पशायर फॉर्म हुआ बाय द एडवेंचरस सेटलर्स. तो इन लोगों ने एक न्यू हैम्पशायर भी एक जगह को बना लिया. इसी तरह से एक्सपेंशन बनता रहा. सो दीज आर द न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज. ये फाइनली इनको न्यू इंग्लैंड की कॉलोनीज बताया गया.
देन उसके बाद कुछ मिडल कॉलोनीज भी बनी, आगे टाइम बढ़ता गया। तो जैसे फॉर्मेशन ऑफ न्यूयॉर्क हुआ, किस तरह से हुआ? सबसे पहली चीज़, ये जो कॉलोनीज थी ये डच के पास थी, जिसे न्यू नीदरलैंड कहा जाता था, राइट। लेकिन इनको अक्वायर कर लिया गया इन द कॉन्क्वेस्ट बिटवीन द डच एंड इंग्लिश। तो फाइनली ये जो कॉलोनीज थी ये इंग्लिश पीपल के पास आ गई, ठीक है। और इन 1664 इस जगह को, सिंस वहाँ पे जो ड्यूक ऑफ यॉर्क है, उन्होंने न्यू नीदरलैंड को न्यूयॉर्क में कन्वर्ट कर दिया, उसका नेम चेंज कर दिया, ठीक है। इट वॉज अ रीनेमिंग देयर। सो न्यूयॉर्क बिकम ए मल्टी कल्चरल विद डच, बेल्जियम, फ्रेंच, स्कैंडिनेवियन एंड जर्मन सेटलर्स। तो उन सब के लिए मल्टी कल्चरल एरिया, एक कॉलोनी उनको मिल गई जहाँ पर वो फ्लरिशिंग किए और आपस में मिलजुल कर रहने लगे, ठीक है। ये कुछ टाइम तक चला, पर लेटर ऑन ऑफ कोर्स एक वॉर भी हुआ है अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही फॉर द फ्रीडम, वो हम बाद में बात करेंगे। So there was establishment of Pennsylvania in 1680, 45,000 square miles of land west to the Delaware River given to William Penn, ठीक है। तो जो पेंसिल्वेनिया है ये इट वाज फाउंडेड, ठीक है। और जो ये मिस्टर पेन के नाम पे बनाया गया, विलियम पेन के नाम पर इस जगह का नाम दिया। और हियर द यूरोपियन माइग्रेशन ड्रिवन बाय रिलीजियस टॉलरेंस एंड अरेबल सॉइल से यहाँ पर आए, ठीक है। तो यहाँ पर यूरोपियन माइग्रेशन होगी जो कि रिलीजियस टॉलरेंस के साथ में रह सकते थे। सो न्यू माइग्रेंट्स वर वेल्दी एंड सेटल कंफर्टेबली। अभी यहाँ पर जो आने वाले लोग थे वो पहले से उनके पास थोड़ा सा पैसा था, दे डिड नॉट फाइंड मच ऑफ द डिफ़िकल्टीज़, ठीक है। अब उनको यहाँ पर अपना एक तरह से बिजनेस बढ़ाना था। सो दे वर लुकिंग फॉर आइडेंचर्ड सर्वेंट्स। सो इनिशियली दे गॉट द आइडेंचर्ड सर्वेंट, मतलब जो वहीं के लोकल अमेरिकन्स थे उन लोगों को इस्तेमाल किया गया फॉर कल्टिवेशन ऑफ टोबैको एंड अदर प्लांटेशंस, राइट। तो ये उनको कॉन्ट्रैक्ट पे किया गया था। सो पेनिसिल्विया प्रॉस्पर्ड एंड बिकम एन इगैलिटेरियन स्पेस। अब वो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी पेंसिल्वेनिया में आने लगी। Then there was a Carolina colonies up the south to Virginia and to Florida, from the south to Virginia to Florida and west to the Pacific Ocean. So ये एरिया जो था जहाँ पर जो सेटलमेंट बनी, this was called as Carolina, ठीक है। तो ये थोड़े अर्बन नहीं थे, but these people were sophisticated, मतलब उनको ठीक से रहना आता था। And जो northern half of it, अब ये साउथ टू वर्जीनिया टू फ्लोरिडा था, अब इसका जो नॉर्थन एरिया था, राइट, उसको ये बेसिकली दीज आर हार्डस्क्रेबल फार्मर्स, ठीक है। तो साउथ हाफ जो था ये तो बेसिकली प्लांटर्स थे, लार्ज स्टेट प्रोड्यूसिंग कॉर्न, लंबर, बीफ एंड पॉप। तो मतलब यहाँ पर भी पार्ट है, दो हिस्सों में है, जिसको हम नॉर्थ कैरोलिना साउथ कैरोलिना बाद में बुलाया गया। तो नॉर्थ में तो जो थे फार्मर्स थे, एंड साउथ में जो हिस्सा था प्लांटर्स का था, जिसमें बड़े बड़े स्टेट्स थे जो कि कॉर्न प्रोड्यूस करते थे, लंबर प्रोड्यूस करते थे, बीफ प्रोड्यूस करते थे और पोर्क प्रोड्यूस करते थे फॉर सर्वाइवल वहाँ पे नॉर्मल फीडिंग के लिए। और यहीं पर ही कैरोलिना कॉलोनी में ही राइस कल्टीवेशन भी शुरू हुआ 1690s में। तो कैरोलिना बेसिकली एक तरह से वो एरिया था जहाँ पर फार्मिंग बहुत अच्छे से ग्रो किया, ठीक है। तो बारबाडोस आइलैंड का फिर एक मतलब एक कनेक्शन यहाँ पे बनता है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द इंग्लिश प्लांटर कॉलोनी इसके बीच में बना, एंड हैवी रिलायंस ऑन द स्लेव फॉर प्लांटेशन वर्क। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इस जगह पर स्लेवरी थोड़ा सा आ जाती है, राइट। नाउ द पॉइंट इज एंडेंजर्ड वर्कर्स आर नॉट एनफ टू डू द डेली वर्क्स देयर, क्योंकि वो थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ रहे थे, right. So they were basically, but however the colonies were heavily depending on the plantation. तो यहाँ से स्लेवरी शुरू होती है, तो स्लेवरी becomes legalized here. अब स्लेव्स कहाँ से आते हैं? they came from African countries, right. and slavery was happening, किसी ने खरीद के दूसरे को बेच दिया। तो इस तरह से था, बड़े बड़े शिप आते थे अफ्रीका से जा करके, जो कि स्लेव्स को यहाँ पर ट्रेड किया करते थे। तो इसी जो स्लेवरी ने है यहीं पर इन दोनों जगह नॉर्थ और साउथ कैरोलिना को जन्म दिया और जॉर्जिया कॉलोनी को जन्म दिया। ठीक है। अब यहाँ पर जो अर्ली सेटलर्स थे उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ की एक बार थोड़े से फिगर्स को जान लेते हैं। 1700 में दिस पॉपुलेशन ऑफ द यूरोपियन अफ्रीकन सेटलर्स इन 13 कॉलोनी वॉर वॉज
250,000 numbers, right? But by the 1775 this approximately 2.5 million settlers came. मतलब अब यहाँ पर ये जो population है, it was 10 times of 1700 population. तो यहाँ पर यानी कि एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन हो रहा था, सेटलमेंट होती जा रही थी. तो इट इज़ बेसिकली पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर द नेटिव पीपल देयर. एक्चुअली साथ ही साथ इसमें क्या हो रहा था कि जो वहाँ के जो पार्लियामेंट है, देयर वाज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमेरिकन पीपल, राइट. एंड एक्चुअली बट हाउएवर द टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन देम. जैसे कि एक स्टैम्प टैक्स लगाया, टाउनशेंड एक्ट उसमें लगाया. तो बेसिकली यहाँ पर इन दोनों एक्ट्स में हो क्या रहा है कि जो लोग जो वहाँ पे अपने आप को फ्लरिश करने के लिए जो सेटलर्स थे, उन लोगों ने इम्पोज किया टैक्सेस को अमेरिकन के ऊपर, एंड और उनकी सिचुएशन जो है बद से बदतर कर दी, राइट. एंड इट लेड टू द रेवोल्यूशन. ठीक है. तो यहाँ पर एक बार साथ साथ की जो लीडिंग टू वॉर इवेंट्स थे उनमें से एक बोस्टन का मैसेकर भी है, जो कि मार्च 5, 1770 में हो गया. देखिए हम ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे इन सब इवेंट्स के बारे में, रीज़न एज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, बट जस्ट यू कीप इन माइंड कि ये चीज़ें भी वहाँ पर हुई हैं. एंड विद द रिवोल्यूशनरी वॉर दिस वाज द वॉर फॉर द इंडिपेंडेंस एज वेल. तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस अमेरिका को मिला, और एक अमेरिका जो है अपने आप में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन गया. मतलब जो पहले जो कॉन्टिनेंट था, दिस बिकम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. देन अलायंस एंड विक्ट्री यहाँ पे हुई. ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई. बेसिकली ट्रीटी ऑफ पेरिस इज व्हाट, जो पेरिस में ही एक एग्रीमेंट जैसा जो ट्रीटी साइन होता है, जिसमें कि उनकी जो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर होती है अमेरिका के, साथ साथ उनके लिए कुछ बेसिक लाइंस और सेटलमेंट भी होते हैं कि इस तरह का बिजनेस ये कर सकते हैं, इस सी में जाकर के यहाँ तक मछलियाँ पकड़ सकते हैं. तो दैट काइंड ऑफ एग्रीमेंट हैड हैपेंड इन दिस ट्रीटी. ठीक है. थोड़ा सा एक बार पोइट्री का ओवरव्यू भी देख लेते हैं. तो विलियम कार्लोस विलियम्स का जो पर्सपेक्टिव था अबाउट द पोइट्री, ही क्लेम्ड दैट देयर इज नो सच थिंग एज अमेरिकन पोइट्री. तो यहाँ पर अब जो इन लाइनों का कहने का मतलब है, इट्स ए काइंड ऑफ स्लाइड क्रिटिक देयर. एक्चुअली ये बताना चाह रहे हैं कि अमेरिकन पोइट्री जैसा कुछ नहीं, से मतलब है कि जो लोग हैं अभी भी जो यूरोपियन पोइट्री है या ब्रिटिश पोइट्री है, उस सबसे इन्फ्लुएंस्ड हैं. तो यहाँ पर नेटिव अमेरिकन का जो इन्फ्लुएंस है, वो इंडिजिनस जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नहीं था, बट यस इन्फ्लुएंस देखा जा रहा है. देयर वाज सम ओरल ट्रेडिशंस इंटीग्रेटेड इनटू अमेरिकन राइटिंग्स. तो जो आसपास के ट्रेडिशंस थे वो दैट आल्सो केम इनटू देयर राइटिंग्स. इसमें जो कुछ मिथ्स थे, सॉन्ग्स थे जो वहीं के लोकल हैं, लेजेंड्स, टेल्स, वॉर चैंट्स. तो यहाँ से इनका शुरू होता है. और साथ साथ इसी के साथ में जो कुछ जो इंक्लूजन्स था इन्हीं के लिटरेचर में वॉज कि कुछ इडियम्स भी इन्होंने लिखने शुरू किए, जहाँ से इनका लिटरेचर इमर्ज हुआ. एंड ब्रिटिश कल्चरल इम्पैक्ट बहुत था इसमें. तो जो ब्रिटिश उनकी राइटिंग्स थी उसमें ब्रिटिश का इम्पैक्ट देखा जाता था. ठीक है. तो चाहे वो इसमें म्यूज़िक है, क्यूजीन है, लिटरेचर है, पॉलिटिक्स है. और इसमें कुछ और राइटर्स के अलग अलग व्यूज़ भी थे. जैसे अमेरिकन पोइट्री इज़ नॉट ए होमोजेनाइज एडिशन टू इंग्लिश ट्रेडिशन. तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो अमेरिकन पोइट्री है ये इंग्लिश ट्रेडिशन के साथ में नहीं मेल खा रही है. तो दीज आर द व्यू पॉइंट्स ऑफ विलियम स्टैनले, एंड इट inherits the whole tradition of poetry in the language. Let us talk about the American spirit. So the English Puritan and their influences was there. So जो immigrated to America in 17th century, these Puritans came and established the colonies like Plymouth Colony and Massachusetts Bay. So these people were driven from the religion, right? So actually they were not liking the poetry, drama and all. So they wanted to write only about the good. So they were so much मतलब driven by the religions. So that was the main point, and their writings, they never wanted this drama and everything and novel and all, a very sophisticated one. So then colonial era poetry की अगर हम बात करते हैं, there was lack of significant poet until the Philip Frano and Edgar Allan Poe. अर्ली पोएट्स और ब्रिटिश प्रोटेस्टेंट्स, मतलब जो शुरू के जो पोएट्स थे ना, ये ब्रिटिश प्रोटेस्टेंट्स थे. तो प्रोटेस्टेंट्स क्या होते हैं, जिस तरह से क्रिश्चियनिटी में कैथलिक्स होते हैं वैसे ही प्रोटेस्टेंट्स भी होते हैं. जो कैथलिक्स है, दे फॉलो द पोप सिस्टम. The Pope will decide and make the rules and regulation which will be followed by all. And the other side is the British Protestants. मतलब ये वो लोग जो प्रोटेस्टेंट्स लोग हैं, ये वो हैं जो कि कैथलिक्स नहीं होते हैं, बट इनमें ये प्रोटेस्टेंट्स ही प्योरिटन्स, बाद में प्रोटेस्टेंट्स की कैटेगरी में प्योरिटन्स आते हैं. ठीक है. जो कि बहुत ही ऑर्थोडॉक्स होते हैं.
देन अमेरिकन पोएट्स में एनी ब्रैडस्ट्रीट, एडवर्ड टेलर, माइकल विगर्सवर्थ, so these were the famous poets. Calvinist piety inspired Puritans to write poetry, and Puritan theological ideologies and the restrictive lifestyle were not encouraging for poetry. जो उनका स्टाइल था, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑर्थोडॉक्सी थी, एंड एक्चुअली इनकी जो आइडियोलॉजीज थी वो रेस्ट्रिक्टिव स्टाइल था, दैट वी कैन नॉट टॉक अबाउट द नेचर, वी कैन नॉट यूज द रोमांटिसिज्म, वी कैन नॉट टॉक अबाउट द पीपल, ओनली द गॉड हैज टू बी, or entire poetry has to centered around, has to revolve around the god. So these were their influences on the poetry. तो बहुत ज़्यादा अच्छा पोइट्री नहीं था उस टाइम पर, ओनली गोड्स के ऊपर ही लिखा जाता था, ठीक है. बट हाउएवर देयर वर अ फ्यू गुड राइटिंग्स वर आल्सो डन, सच एज द डे ऑफ डूम which had happened in 1962 by the Michael Wigglesworth, the Baysham book which happened in 1640, and the New England Primer which was published in 1683. तो इसी तरह से द डे ऑफ डूम जो एपिक था, जो कि एक जजमेंट डे की बात करता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, फिर एक जजमेंट डे आएगा, ठीक है. और इसी तरह से इसमें ये जो लिखा था ये 24 स्टेंजाज में था और बलाड मीटर में था, राइट. तो बेसाम बुक भी था, न्यू इंग्लैंड प्राइमर था, इस तरह से लिखे गए, बट दीज वर रिवॉल्विंग अराउंड द प्यूरिटनिज्म ओनली, तो रिलीजियस था थोड़ा सा, राइट. तो इसी तरह से कई सारे पोएट्स और आए, आप चाहो तो इनका थोड़ा सा डिटेल वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं, सच एज एनी ब्रैडस्ट्रीट, एडवर्ड टेलर. सो दीज वर दी ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट आइडेंटिटीज इन अमेरिकन पोएट्री. बहुत सारे इसमें है, तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को एक बार पॉज करके, जैसे माइकल विगल्सवर्थ है, कॉटन मैथर है, इन सबको भी आप पढ़ सकते हैं. नेथियल, कुछ और उसके अलावा भी नेथियल वॉर्ड. वीडियो में अब तक का समरी जान लेते हैं. सो ओरिजिन ऑफ अमेरिकन पोएट्री was developed in the colonial era, influenced by the British model and Puritanism, because British model says that there was imitation of the British material only, British literature, and also the Puritanism was the thought, which is all the poetries were revolving around the Puritanism and the religious practices. Then impact of the British poetic writings which reflected the systematic progress in colonies. मतलब पहले इनिशियल जो राइटिंग्स थी वो ब्रिटिश पोएट्स का था, जिसको धीरे धीरे करके अमेरिकनिज्म की तरफ लेकर के गए. सो दिस प्रिजर्व द इंटेग्रिटी ऑफ प्यूरिटन आइडियल्स. तो वहाँ पर भी प्यूरिटेनिकल आइडियल्स के साथ में ही वो पोएट्री लिखी गई. दैट ड्राइव टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस. अब जो यहाँ पर था, यहाँ एक तरह से रिवोल्ट था, अवंट गार्डे लिखा जाने लगा. तो ऐसे जो कॉलोनिस्ट जो थे उनका जो कॉन्फिडेंस था, मतलब वो थोड़ा सा, मतलब जिस तरह से देखा उसको समझा, तो फिज़िकली रिमूव फ्रॉम द इंग्लिश पोएटिक डेवलपमेंट्स. तो मतलब अभी जो कॉलोनिस्ट का जो शिफ्ट था वो अब अमेरिकन की तरफ था, और अमेरिकन बेसिकली वहीं का लोकल चीज़ें अब लिखना शुरू कर चुके थे. तो प्योरिटिकन क्लर्जी इन्फ्लुएंसेस यहाँ पर आया. देन कॉलोनिस्ट रिलीजियस मोटिवेशंस आया वहाँ पर, क्योंकि उनको रिलीजियस मोटिवेशन भी आया. दैन मोरल हीरोइज्म इन द कॉलोनियल लिटरेचर, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे करके जब हम रिवोल्ट की बात करने लगे, हमें यहाँ पर जब अमेरिकन फ्रीडम की तरफ इंक्लाइन होने लगे, तो उसी तरह से थोड़ा सा हीरोइज्म भी बीच में आया. तो ऑल इन ऑल अगर आप इससे समझेंगे तो आपको दिखेगा कि जो कॉलोनाइज टाइम की जो पोएट्री है, इट इज़ टूवर्ड्स कि हमारे पास जो कॉलोनियल एरा में जो ब्रिटिश मॉडल्स के ऊपर थी, या फिर उसमें प्यूरिटनिज्म भर भर के थी. इस वीडियो के लिए बस इतना ही. मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन. मिलते हैं अगले वीडियो में. धन्यवाद.